جامعہ ابوالحسن کے مایہ ناز استاد تشریف فرما ہے حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب جو جامعہ ابوالحسن کے ماہر استاد ہیں. یہ آپ حضرات کے سامنے اپنے کلمات عالیہ سے مستفید اور ہم سب کو مستفید فرمائیں گے. میں لوگوں کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دے گی, ان کی تقریر میں دریا کی روانی دے گی, گلشن گل کی رنگین جوانی دے گی, گلشن گل کی رنگین جوانی دے گی. آپ حضرات کے سامنے اب ہمارے مقبول محترم حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب اپنی بات رکھیں گے. میں چاہتا ہوں سرپرست حضرات بھی تھوڑا جو ہے آگے آ جائے تاکہ بات ہٹانے لگا تو مکمل ہو جائے. حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاه والسلام. انہیں بچوں سے اثر زندگی تعمیر ہوتے ہیں, انہیں بچوں سے اثر زندگی تعمیر ہوتے ہیں. یہی بچے ہمارے خوابوں کی تعمیر ہوتے ہیں. محترم بزرگوں دوستوں, یہ بچے عصر کے بعد سے لے کر کے تقریباً 3.5 گھنٹے سے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور سرپرست حضرات, محترم مائیں بہنیں, یہ بھی قابل مبارکباد ہیں جو وقفے سے مغرب بعد عشاء بعد عصر کے بعد اپنی حاضری لگائی اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انعامات سے نوازتے ہوئے شرکت کی. یہ قابل مبارکباد ہے اور واقعی یہ جشن اور خوشی کا موقع ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پورے محلے میں عید کا سما ہوتا, خوشی کا جشن کا ماحول ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خالق کائنات کی طرف سے جو عظیم تحفہ انسانوں کے نام بھیجا گیا ہے, آج ہمارے محلے میں جو ننھے بچے اس کی تکمیل کر رہے ہیں, اس عظیم نعمت کو پڑھنے پر قدرت حاصل کر رہے ہیں. ایک جشن کا ماحول ہوتا, پوری مسجد بھر چکی ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر بھی غنیمت ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر نظر آ رہی ہے. یہاں بڑی تعداد میں سرپرست حضرات ہیں, اسی طرح مقصورات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے خوب خوشیوں سے مسرتوں سے نوازے. اسی کے ساتھ ذمہ داران حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنے تعاون وغیرہ سے انہوں نے پورا جو ہے فکر کی اور آپ حضرات کے سامنے اتنا منظم نظام پیش کیا. محترم دوستوں, جو میں نے آگے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے بطور خاص والدین کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم
बचा लो आग से, उस आग से बचाओ। जिसका ईंधन कोयले और पत्थर नहीं होंगे, जिसका ईंधन कोयला और जो है इसी तरह की दूसरी लकड़ी ये चीजें नहीं होगी, बल्कि पत्थर और इंसान होंगे। जिसके अंदर जो है काफिर जलेंगे और उससे जहन्नम की आग लगेगी। ऐसी आग से है ईमान वालों को अपने आप को अपने बीवी बच्चों को बचाओ। उस आग पर, उस जहन्नम की आग पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े सख्त मिजाज है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म दिया गया उसको नाफिज करते हैं और उसमें कोई नाफरमानी नहीं करते। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने बतौर खास वालिदैन को हुक्म दिया है कि वो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाएं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में बड़ा प्यारा खिताब का अंदाज इख्तियार किया। हम लोग देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को पुकारते हैं तो कभी उस बच्चे का नाम लेते हैं, जैद, अबू बकर, सलीम, करीम वगैरह, और कभी कुछ मोहब्बत जो है ममता जागती है और दिल के अंदर जो है कुछ मोहब्बत होती है, कुछ अहम बात पैदा होती है तो हम कहते हैं बेटा इधर आओ। तो दो तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। एक तो एक नाम होता है उससे पुकारा जाता है और दूसरे उस रिश्ते के हवाले से पुकारा जाता है जो उसके और हमारे दरमियान कायम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारे मकामात पर खिताब किया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात पर अपने उस ताल्लुक को जाहिर करते हुए खिताब किया है जो अपने खास बंदों से हैं। और उसमें से एक जगह ये आयत भी है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ वो बंदों जिन्होंने मुझ पर ईमान लाया, मेरा कलमा पढ़ा, मेरी बंदगी को कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ प्यार भरा खिताब जो है इख्तियार किया है और ये इसलिए किया है ताकि अगली जो बात कही जा रही है वो बहुत अहम है, उसको जो है अपनाना है और उसके ऊपर जो अपने आप को लाना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने आप को और अपने अहल खाना को आग से बचाओ। हम लोग देखते हैं समाज और माशरे में कुछ लोग बड़े दीनदार होते हैं लेकिन उनके बीवी बच्चे दीनदार नहीं होते। ये तो तहज्जुद गुज़ार होंगे, पहले सब का एहतमाम करने वाले होंगे, हज उम्रा करने वाले होंगे, जो है वो दीनदारी के अंदर जो है नजर आ रही होगी, लेकिन बीवी बच्चे दीन से बेजार होंगे और जो है वो नमाजों का एहतमाम नहीं करते, गुनाहों से नहीं बचते और जो है गुनाह के अंदर बड़े चले जाते हैं। तो अगर आदमी सिर्फ अपनी फिक्र कर ले तो ये काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया अपने साथ साथ अपनी बीवी और अपने बच्चों की भी फिक्र करे और उन लोगों को जो है जहन्नम की आग से बचाए। बात लोग ये कहते हैं कि देखिए समाज और माशरा ऐसा खराब हो गया है कि हम अपने बीवी बच्चों को समझाते हैं, दीन की तरफ लाने के लिए कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन मानते ही नहीं और माहौल के खराब असरात की वजह से वो लोग जो है गलत रास्ते पर चले गए। हम थक गए तो अब हम अपना मामला अपना अमल करेंगे और उनको छोड़ दिए। अब हम उससे भी जो है कुछ ताल्लुक रखते हैं। हवाले के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हवाला भी देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जो थी वो काफिरा थी और उसने नूह अलैहिस्सलाम नबी पर ईमान नहीं लाया था। इसी तरह से उनका एक बेटा था वो भी काफिर था और वो भी ईमान नहीं लाया था। तो नबी अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के उन्होंने जो है जिम्मेदारी अदा की, वैसे हमने भी अदा कर दिए और जिस तरह से उनके बीवी बच्चे ईमान नहीं लाए थे और वो मुश्किलों पर गुजार रहे थे, इसी तरह हम भी जो है सारी जिम्मेदारी अदा करके अब उनके हाल से छोड़ दिए हैं। तो मोहतरम दोस्तों, ये कहना दुरुस्त तो नहीं है। अल्लाह पाक ने इस जुमले का जवाब दिया है कि तुम अपने बीवी बच्चों को उस आग से बचाओ जिसका
इंसान काफिर इंसान और पत्थर है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी हुई है और हमारा बच्चा नादानी में उस आग की तरफ जा रहा है, तो अगर बच्चे सही माँ बाप होंगे तो क्या वो जो है सिर्फ जुबानी जमा कर ऊपर इस्तेमाल करेंगे कि बेटा बहुत बड़ी आग लगी है, बेटी बहुत बड़ी आग लगी है, वहाँ जाना मत, जल जाओगे और तुम जो है मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, बल्कि सच्चे माँ बाप अगर होंगे, सगे माँ बाप अगर होंगे तो उनकी नींदें हराम हो जाएगी और उनका जीना हराम हो जाएगा। वो दौड़ेंगे और किसी तरीके से बच्चे को गोद में उठा करके धकेल करके किसी तरह उस आग से बचाएंगे। जब तक उस आग से बचा नहीं लेते उनको चैन नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस तरीके से दुनिया की आग से तुम बचाते हो, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जहन्नम की आग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। रिवायतों में मिलता है कि जहन्नमी जो जहन्नम की सजा भुगतेगा, अगर उसको दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उस आग के मुकाबले में उसको इतनी राहत इस आग में मिलेगी तो हो जाएगा। कितनी सख्त आग है जहन्नम की, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जहन्नम की आग से बचाओ, इस तरीके से तुम दुनिया की आग से गए अपने बच्चे को, अपनी औलाद को बचाते हो। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने तो कह दिया, नहीं, जितना अमली तौर से हम लोग फिक्र कर सकते हैं अपनी औलाद को बचाने की, उनको दीन पर लाने की, वो फिक्र करना जरूरी है। जो इजहार किया जाता है वो दुरुस्त भी नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने बीवी बच्चों और अपनी कौम को जो है दावत की, उनको बताया, उनको समझाया और तरह तरह से उनको समझाया। अपने सूरतों के अंदर हम देखेंगे तो कुरान करीम की सूरतों के अंदर अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम का शिकवा बयान किया। वो कहते हैं कि आप इतनी जाओ कौमी जिहादा, मैंने अपनी कौम को जो है जाकर के समझाया, जो है उनकी मिल्लत समाजत की रात में गया, दिन में गया, उनको जो है गुस्से से भी कहा, उनको नदी से भी कहा। पूरा रोजा जो है हमारे इस्लाम के सुनहरों के अंदर जिक्र किया। 2 मुकम्मल सुनहरों के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे इस्लाम की दावत को, उनके जज्बबंदी को, उनकी फिक्र को, उनकी कोशिशों को बयान किया है। तो आज जो लोग कहते हैं कि हमारे इस्लाम की बीवी काफिरा थी, उनके बच्चे काफिर थे, तो ये बुरे इल्जाम देते हैं कि हमारे इस्लाम भी हमारी तरह जमा कर जुबानी बोल दिया करते थे, बस नहीं, बल्कि उनके पीछे ये मेहनतें थी। तो ये विधान देना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में दिया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी औलाद की फिक्र की है, उनको दीन पर कायम रखने की कैसी जद्दोजहद की है और कैसी कैसी उनकी जो है फिक्र करते हुए जो है उन लोगों को दीन पर और हालात पर लाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर चूंकि मस्तूरात की है और मस्तूरात की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। देखिए हम लोग जज्बात हैं, हम लोग सुबह उठते ही अपने काम काज पर चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल और मदरसा कौन भेजता है, कौन उसके लिए तैयारी करता है? ये ख़वातीन तैयारी करती है। मस्तूरात हमारे घर की माएँ और बहनें जो हैं सुबह सुबह बच्चों को उठाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़ा पहनाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी और जो है अगर दोपहर की स्कूल है तो सुबह मकतब भेजेगी और अगर सुबह जो है सुबह की स्कूल है तो सुबह स्कूल भेज करके दोपहर में मकतब के लिए रवाना करेगी। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का तकाज़ा है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 2 वाक़यात जिक्र किए हैं, इससे ये समझ में आता है कि माँ की जिम्मेदारी कब से शुरू होती है और बाप की जिम्मेदारी कहाँ तक रहती है। देखिए बहुत ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं, इस वजह से कि बच्चे जो है तकरीबन 3-4 घंटे से इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और ऐसा भी जो है वक्त भी हो गया, इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त में अहम बातें आपके गोद गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझते हुए सुनिए, अल्लाह पाक ने माँ और बाप की जिम्मेदारी उनकी फिक्र कुरान करीम में कहाँ और किस दर्जे की बयान की। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया और उनकी जो फिक्र थी, उनकी जो अल्लाह ताला के दरबार में गुजारिश थी, उसको जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी
की वालिदा, ये इमरान की बीवी, ये कह रही है कि या अल्लाह, मैंने मेरे पेट में जो कुछ भी है, यानी जब ये हमल से हुई, उम्मीद से हुई, तो ये दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, मेरे बत्न में जो भी औलाद है, मैं उसे तेरे नज़र करती हूँ, तेरे हवाले करती हूँ, तेरे दीन के लिए वक्फ करती हूँ। माँ के पेट में बच्चा है, सबसे माँ दुआ कर रही है और कह रही है कि मेरे पेट में जो कुछ है, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। जब ये जो है पैदा होगा तो मैं तेरी मस्जिद अक्सा के अंदर इसको जो है वक्फ कर दूंगी और ये मस्जिद की खिदमत करता रहेगा और जितना हो सकेगा पूरी जिंदगी इसको उससे लगा देगी। ऐ अल्लाह, मेरे इस नज़र को जो है कबूल फरमा लीजिए। सभी और आलिम, बेशक आप सुनने वाले और इल्म वाले हैं। इतना कह के खामोश नहीं हो गए, बल्कि बयान करवाया कि उस खातून की क्या दीनी कैफियत थी, कैसे दीन के ऊपर अपनी जो है औलाद को कुर्बान करने का फैसला था। ये उन्होंने फिर आगे दुआ किया, आगे के जो वाक़यात हुए वो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब उनको हमल से हमल हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, तो मरियम अलैहिस्सलाम की लड़की थी और लड़की मस्जिदों में रहेगी क्या? मस्जिद के अंदर और दीन के कामों में जो सरबराही करेंगे वो कौन करेंगे? वह तो करेंगे, लड़की तो नहीं करेगी। तो वो कहने लगी, अल्लाह हमारी किसी के आलम में रहना, मैंने तो दुआ की थी जो है आपके दीन के लिए, आपके घर के लिए वक्फ करने के लिए मैंने जो है नज़र मानी थी, लेकिन इनने वाला हुआ उनका, मैंने तो जो है लड़की से नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हो होता है, अल्लाह जानता है कि क्या उसके जरिए है, क्योंकि औलाद को देने वाला होता है कि अल्लाह ने उनको मुकद्दर किया कि इनके बत्न के अंदर जो है इनके पेट में लड़की हो। फिर जो है पूरा वाक़या आगे जिक्र किया गया। तो अल्लाह ताला ने उस खातून के दीन के ऊपर अपनी औलाद को कुर्बान करने और उसके दीन के लिए जो है लगाने का जो जज्बा था, उसकी कदर करते हुए मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बत्न में रखा। लेकिन देखिए नानी की दुआ, नानी की दुआ ऐसी है जो नवासे के हक में कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ी निशानी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा किया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला असबाब से जो है वजूद में लाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम से सारी नस्ल चली, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के अल्लाह ने पैदा किया, हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के अल्लाह ताला ने खल्क़ किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो निशानी बनाई अपनी कुदरत की, तो उसको किसके बत्न में रखा और किसको माँ की हैसियत दी? ये मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम को किस वजह से दिया? ये नानी की दुआ थी। नानी का दीन पर अपने औलाद को जो है लगाने का जज्बा था कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने जलीलुल पैगंबर को जो है उनके खानदान ने और उनके जो है नवासे के तौर पर कबूल किया। तो इस वाक़ये से ये समझ में आता है कि माँ को अपनी औलाद के जिंदार होने की फिक्र कब से होना चाहिए? जब औलाद पेट के अंदर ठहर जाए, अगर ठहर जाए, पेट के अंदर औलाद आ जाए, तब से माँ को फिक्र होना चाहिए कि इस बच्चे को मैं जिंदार बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। अल्लाह ताला से दुआएं करती रहे और जो है उसको हाफिज़, आलिम और दीन का दाई बनाने की फिक्र करे। ये जो है कुरान करीम की माँ की जिम्मेदारी का जो है लिखता है कि माँ की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। इसी तरह दूसरा वाक़या इससे ये मालूम होता है कि बाप की जिम्मेदारी कहाँ तक, जो सरपरस्त अल्लाह है को तवज्जो हो कि बाप की जिम्मेदारी कहाँ तक है। इस पर जो है याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह पाक ने कुरान करीम से जिक्र किया, अपने बाबा के अंदर है। आप उनको मुस्लिम कि हक़ याकूब अल-मौत इज़ क़ाल लिअबीहि मा तअबुदून मिन बअदी। जब याकूब अलैहिस्सलाम
की मौत का वक्त आया, उस वक्त को याद करो। उनकी मौत का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को जमा किया। आप जो है मौत के करीब है, जो है बिस्तरे मर्द पर है, आपकी खुद जो है मृत्यु हुई है, उस आलम में आपने तमाम बच्चों को बुला करके क्या कहा? आज हम देखते हैं कि जब किसी की मौत का वक्त आता है, तमाम रिश्तेदारों को जमा करता है और जमा करने के बाद फिर दुनिया की बातें करता है कि जब बड़ा कारखाना है, वो जो है उसका ध्यान रखना, बोला करिए है, बोला करिए है, दुनिया की बातें करता है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद को जमा करने के बाद कह रहे हैं, माता मेरे बेटो बताओ, मेरे मर जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी बंदगी करोगे? इस दर्जा बाप को फिक्र है कि कब्र में चैन से बीच टेक नहीं सकते जब तक उन्होंने अपने बच्चों से ये अहद नहीं ले लिया, ये पूछ नहीं लिया कि बताओ तुम अकीदे तौहीद पर कायम रहोगे या नहीं, किसकी इबादत करोगे? वो बच्चे भी अंबिया के थे। उन्होंने कहा अबू जान आप फिक्र न करें, हम आपके माबूद है अल्लाह पाक ही की इबादत करेंगे, खुदाए वाहिद अल्लाह की इबादत करेंगे। और आपके बाप दादा जो याकूब अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ये जिस खुदा की इबादत किया करते थे, हम भी उसी खुदा की इबादत करेंगे। तो इस वाक़े से मालूम हुआ कि बाप की जिम्मेदारी अपने औलाद के दीन और अकीदे से किस दर्जे होना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए। ये जो वाक़यात है इस पर जो है अपनी बात से बैठते हुए कहता हूँ, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो बच्चे हैं इनकी असल तामीर की और इनकी जो है तरबियत की तालीम की जिम्मेदारी माँ बाप पर है। लेकिन आप अपने इन असातिज़ा का मकसद में पढ़ाने वाले की मुआज़िरीन का शुक्रगुज़ार रहिए, एहसान मत रहिए कि आपकी जिम्मेदारी अलग है, ये आपकी जिम्मेदारी अलग कर रहे हैं, असल जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन ये बच्चे आपके, ये जो है मुआज़िरीन आपके बच्चों को दीन सिखा रहे हैं और अपने माँ बाप की जो है खिदमत करना। आपने देखा दो बच्चे बड़े होकर के आखिर में इस तरीके से अपने वालिदैन के हुकूक, उनके फ़ज़ाइल और वो सारी चीज़ें जिक्र कर रहे थे माँ बाप की इताअत पर। आपके बच्चों को ये तालीम दिए गए हैं, आप किसी स्कूल में जाकर के देखिए, किसी कॉलेज के अंदर जाकर के देखिए, वहाँ ये तालीम नहीं दी जाती, बल्कि आज मुस्लिम स्कूलों में भी नामकरण सिखाया जा रहा है। सालाना गेदरिंग के नाम पर बच्चों को नाम से करवाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये मकसद के अंदर ये मुआज़िरीन है जो आपके बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, अक़ीदा सिखा रहे हैं और आपके बच्चों को माँ बाप के हुकूक यानी आपके हुकूक सिखा रहे हैं और आपकी खिदमत के लिए जो है ऐसे ऐसे वाक़यात उनको बताए जा रहे हैं, उनकी मदद कराई जा रही है। ये आपके ऊपर जो है ज़बरदस्त एहसान है। आप लोग इनकी जो है शुक्रगुज़ार है, इनकी कदरदारी करें, इनकी तरफ से जो भी तकाज़ा आए, मकासद के ताल्लुक से कोई जो है माली ताउन की ज़रूरत हो, अफराद के ताउन की ज़रूरत हो, आप इनका आगे बढ़ करके जो है उनके कामों को करने की कोशिश करें। ये आप लोगों की तरफ से ज़बरदस्त जो है काम और खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा ज़बरदस्त मकाम है। ये ऐसी तिजारत कर रहे हैं जो कभी जो है हलाक होने वाली नहीं है, उसका अल्लाह ताला इनको जो अजर है अल्लाह ताला इनको अता करेंगे। लेकिन ये आपके बच्चों को जो नेमत से, जो दौलत से नवाज रहे हैं, बहुत बड़ी। अभी मैंने सुना हमारे जो है मौलाना साजिद खान नकवी साहब ने बताया, मुफ्ती रहमान साहब की जो हिफ्ज़ की तलाश चलती है, उस हिफ्ज़ की तलाश में 2 बच्चे हाफिज़ कुरान करने वाले, ये 2 बच्चे हिफ्ज़ कुरान को अपने सीने के अंदर जो है लेने वाले हैं और इस हिफ्ज़ कुरान की वजह से मालामाल होने वाले। ये हमारे जामिया अबुल हसन के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे 18 जो मकामात पर मकासद चल रहे हैं और 40 से ज़ायद सलाते हैं, उनके अंदर पहला मकसद होगा जिसमें हमें पहला हाफिज़ कुरान आपके इलाके से मिलेगा। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, आपके लिए बड़ी सआदत की बात है।
दौलत आपके बच्चों को यहाँ से मिल रही है। कुरान करीम सबसे बड़ी दौलत। देखिए 4 नेमतें बयान की जाती है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, जानवर बना देता तो क्या कर लेते, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, उसके बाद ईमान दिया। अगर काफिर होते, इंसान होते तो कि जहन्नम का ईंधन बनते। अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी, उसके बाद मोहम्मदिया ने हमको पैदा किया। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और इसने नबियों ने उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्ज होना जो है पसंद किया। अपने वक्त में नबी न बनते हुए उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज होना, इसकी दुआ है कि इसको पसंद किया है। बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया ने हमको शामिल किया। और चौथी जो आखिरी नेमत है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर बहुत अहम बात है, अहम बातों की जिक्र करना है। चौथी जो बड़ी नेमत है वो है कुरान करीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की नेमत जो नवाजी है, ये बहुत बड़ी दौलत है। कायनात के खालिक और मालिक की तरफ से इंसानों के लिए सबसे अजीम तोहफा जो आया है वो कुरान करीम का तोहफा है। इसका एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक बड़े आलिम दीन, वो पंजाब के रहने वाले, वो गुजर रहे थे और बयानात वगैरह कर ये कहने लगे कि ये जिहाद के हमको राम गुजारना पड़ेगी, अब वक्त नहीं है। तो उनके सरवंत ने कहा कि अबू जान, अब हम लोग रात कहाँ गुजारेंगे, ये जिहाद है और जो है यहाँ पर सारे सिख लोग हैं, मुसलमान तो है नहीं, कहाँ हम लोग रात गुजारेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा घबराओ मत, परेशान मत, वो एक सिख मुसलमान, क्या है, सिख मुसलमान है, यानी सिख है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका नाम उन्होंने रखा कि सिख ऐसा है जो मुसलमान है, हम उसके यहाँ ठहरेंगे। और ये भी बात है। बेटे ने कहा कि अबू सिख भी मुसलमान की आगे तो चलो देखो मैं बताता हूँ कौन है क्या है। तो जैसे ही वो गाँव के अंदर गए तो एक लंबा तड़का सिख जो है वो अधेड़ उम्र का या गरीब गरीब बुजुर्ग होगा, वो खड़ा हुआ और उसी के साथ जो है वो आगे बढ़ करके मौलाना आए, मुसलमान आए, आलिम आए, वो गले में अपने मोहब्बत और सबाब के साथ जो है इसके बाद किया, खाना पीना खिलाया, रात गुजारने के लिए जो है जगह दी। तो गलत आदमी बोले मुसलमान भी नहीं है और गलत तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने लड़के ने कहा कि क्या बात है, ये इतनी ज्यादा हमसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, ये आखिरी बात है कि अपनी बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं से पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आपका क्या बात है, आप एक मुसलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, क्या चीज़ है जो आपको इतनी मोहब्बत जो है पैदा कर रही है। तो उन्होंने अपने एक वाक़या बताया कि देखिए ये घर है, यहाँ पर जो है मुसलमान घराना रहा करता था, एक मुसलमान घराना यहाँ रहा करता था। एक वक्त तो ऐसा है कि पूरे गाँव के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तंगी आ गई माश की। तो वो घराना हमसे कहने लगा कि भाई हम लोग जो है अब यहाँ ये गाँव छोड़ करके जा रहे हैं और हम दूसरी जगह रहेंगे, वहाँ पर अच्छी माश के दराए वगैरह मौजूद हैं, तो हम वहाँ रहेंगे। उसके भाई ने कहा कि देखो हम भी परेशान हैं और वहाँ जब तुम जाएंगे पूरा शहर के अंदर तो हमारे लिए कुछ माश वगैरह का देखना, ताकि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से उनको रुखसत किया। फिर ऐसा हुआ तो घर खाली पड़ा रहा। एक वक्त तो ऐसा आया कि उस चीज की बीवी वो एक मतलब ऐसी अचानक घर में चली गई, वो घर जो खाली था मुसलमानों का छोड़ा हुआ, तो वहाँ देखा कि एक पोशीदा किताब रखी हुई, एक पोशीदा किताब रखी हुई है। तो उससे जो है ऐसे हाथ लगा के झटका देखा तो कुछ लिखा हुआ है। तो दौड़ी दौड़ी आई और अपने शौहर को कहा कि देखो ये कुछ ऐसी किताब नजर आ रही है जो वो पढ़ते थे और वो छूट गई है, वो रखी हुई है, जरा सा जा करके देखें तो क्या है। तो जैसे वो गया तो देखा कि अरे ये तो कुरान करीम है। उसने फौरन उसको झटका और उसको जो है मोहब्बत से चूमा, सर के ऊपर रखा और उसको जो है प्यार मोहब्बत के साथ जो है दुकान में रख के सबसे ऊंची जगह रखा, सबसे ऊंची जगह रखा। तो इससे कहते हैं कि जिस रात मैंने रखा, शाम मैंने कुरान करीम के साथ अजमत वाला मामला किया, तो मेरी जो भैंस थी वो 2 लीटर दूध दे दी, उसने उस रात के 12 लीटर दूध दिया। कितना दिया? 12 लीटर दूध दिया। और उसके बाद तो वो दिन है और आज रोज रोज तरक्की करके चला जा रहा। अल्लाह ताला ने पूरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा माल और दौलत मुझे दिया। तो कहने लगे ये
भी से ताले रहते वो नवाजते हैं। आज जिन घरों में हाफिज़ कुरान होते हैं अल्लाह ताला उन घरों में बरकतें डालते हैं और उन घरों के अंदर फाका नहीं होता, उन घरों के अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से खूब बरकतें हुआ करती है। आप मुशाहिदा कर लीजिए, मैं खुद एक ऐसे घराने को जानता हूँ जिसके सारे बच्चे हाफिज़ कुरान हैं और उनके वालिद हाफिज़ कुरान है, उनकी वालिदा हाफिज़ा है। तो ये घराना ऐसे कहता था कि कुरान की बरकत से इतना ज़्यादा नवाजा गया, लाखों पर पड़ती है। जब वो अपने घर से निकले थे खाली हाथ था, तो जिसको के कपड़े थे किराए के घर में रहना शुरू किया और हाफिज़ कुरान ने अल्लाह ताला के कुरान की वजह से उनकी नस्लों के अंदर जो लोगों ने कुरान को कुरान के हाफिज़ कराया, अल्लाह ने दुनिया से भी नवाजा। और आखिरत का क्या कहना, आखिरत का क्या कहना, तो ये सब जो बातें थी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन तमाम बातों पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से दोबारा हम मशकूर और ममनून हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा निकाल कराया और इसके साथ जो है रहने की मुश्किलात हैं, ये भी ऐसे बच्चों को भेजती है। 140 बच्चे सिर्फ 2.5 साल की मुद्दत के अंदर जो है आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 5 चलाते कर रही है। बड़े काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह ताला से रसूल कबूल फरमाए और तमाम तरक्कियां के हवाले आज के दावा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ बांधो, दो सामने बैठो, बेटा आगे देखो, आगे देख, उसके लिए ये बनाया गया है कि नाम तो किया जाएगा बच्चे को, लेकिन उसके हवाले नहीं किया जाएगा तो उसके परिवार की जगह में मौजूद रहेगी। इसलिए कि ये सारी तैयारी और ये सारा कुछ प्रोग्राम हम सरपरस्तों के लिए रखते हैं ताकि बच्चे के सरपरस्त आए देखें और बच्चे की जो हौसला अफजाई हो, आपको भी खुशी हो, आपको भी इत्मीनान हो, तो इसलिए ये बनाया गया है। इसलिए जो भी बच्चे जहाँ पर आए वो अपने सरपरस्तों को साथ लेकर आए। मैं सोचता हूँ वो वक्त जिंदगी को बेहतर काम कर अपने बच्चों के कामना है, इसलिए सरपरस्त हमारा काम करें। आपको पैगाम साल की औलाद सुबह की बच्चे बहुत से सुनेंगे और खामोश रहें तलबा। आप इस पैगाम साल की क्लास के तलबा सुबह वाले। इसके तीसरे नंबर से जो बच्चा आया है अयान अहमद सलीम है, अयान अहमद सलीम अपने सरपरस्त के साथ आए और सबसे मोहतरम के आदमी इनाम तीसरे इनाम कहता है, तीसरा इनाम अयान अहमद सलीम सरपरस्त आए हैं इसके बाद। दूसरे नंबर से आए मोहम्मद सिद्दीक का प्यार, सरपरस्त को साथ आएंगे। इनको अगर इनाम दिया जाएगा, इनको इनाम दिया जाए और रख दिया जाए मोहम्मद सिद्दीक।